So, welcome guys. Welcome to day 8. So, we are in operators. So, in day 5, 6, 7, we already discussed about arithmetic operators. Arithmetic operators are plus, minus, star is for multiplication, slash is for division, double slash is for a floor division, double star is for power, and this symbol is used for modulus. This is what first arithmetic operator. Second operators are relational operators. Okay, relational operators, greater than or equals to, less than or equals to, then equal to, not equal to. Then third one we discussed about logical operators. Logical and, then logical or, and logical not. Okay, then after that, so sequence is not mandatory, it is not important to remember in sequence only. So fourth one, we discussed about compound assignment operators such as equal to, a plus equal to, minus equal to, star equal to, slash equals to, and all operators equals. Then fifth one, we already discussed about bitwise operators. Okay, bitwise and, bitwise or, and bitwise not. So today we are going to see identity operators. Okay, today we are going to see identity operators, when to use identity operator. Okay, so we have two operators, identity operators, is not. So when to use is and is not, I will explain in detail. So yeah, we will take some example. Suppose we have object. Suppose here x equals to 1001. So in memory it allocates space for 1001. So here it is going to store 1001, and x is what pointing to this object. Okay, so if I want to see the id of this object, simply write id of x. So it will give you some a number. Okay, suppose 12487 something, a random number. It is a memory location, we can say, but it is a id of that object. Another time, after some time, if I assign y equals to something 1001. Okay, so here Python will check whether for 0 to 255 it will refer to same object, but after 2 to 255 255 it will create new object. Suppose here y, and there will be a some space for y. It is creating object and storing 1001. Suppose the id of it is what, 7684321, something like y is pointing to this object. So what is operator is, so if I tell Python x is y, generally is will compare the id of the object. Suppose the id of this object and id of this object, if these two ids are similar, then it will return true, otherwise false. Okay, so if you use any number from 0 to 255, it will not create a new object. Okay, about 255 it will create different objects. So I will show you here. So simple, a equals to 10 and b equals to 10. Okay, so here a equals to 10 and b equals to 10. So first of all, I would like to see the id of a and id of b. So what you can write here, print, inside print you can see id of a. Okay, this is what first one, and second one, print id ऑफ बी. हमें दोनों वेरिएबल्स के आईडी चेक करना है. आईडी मींस व्हाट, इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ कि मेमोरी लोकेशन में जो भी नंबर असाइन हुआ है उसे आईडी बोलेंगे हम लोग. ओके, सो इन लेमैन डेफिनेशन वी कैन से not exact memory location, but some number is assigned to that object, so that is id. Okay, so we will see the id of a and id of b. So here the id of a and id of b both are same. Why it is same? So Python is very smart. Suppose a equals to 10 यहाँ पर मैंने बोला है. Okay, so a equals to 10, इसका मतलब क्या हुआ, एक मेमोरी लोकेशन में a के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट, उसमें 10 स्टोर हुआ है. a is pointing to that object. So in Python everything is object because it is a object oriented programming language. Fine. So here id is how much, 1407, जो भी ये id है, ये this is id. Okay, then 224. So whenever I create
a इक्वल्स टू 10, मेमोरी में एक स्पेस मिलेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसमें यहाँ पर 10 स्टोर होगा. नेक्स्ट टाइम व्हाट आई एम डूइंग, b equals to 10, I am creating a new object with the same value. But Python is very smart. Python क्या बोलता है, no, you don't need to create a new variable because I have already a variable a. तो आप एक काम करना, a को रिप्रेजेंट करना या फिर a को पॉइंट करना. ओके, a को पॉइंट करना. I will show you. Anyone wants to join here? So whenever I say a equals to 10, it is created. नेक्स्ट टाइम मैं b इक्वल्स टू 10 स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ. बट पाइथन इज वेरी स्मार्ट. ओके, पाइथन इज वेरी स्मार्ट. पाइथन क्या करता है कि नो, आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड a इक्वल्स टू 10. सो आप एक काम करना, b इक्वल्स टू 10 बोल रहा हूँ तो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, a को ही पॉइंट करना है आपको, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. सो नाउ टेल मी, नाउ टेल मी what is the id of a and id of both are same, yes or no? So in this case, if I say a is b, then it will return true, it will return true. Okay, आया क्या समझ में आप लोगों को? Yes everyone? Yes. So whenever for small numbers 0 to 255, if any variable is already created with some value, again you are creating the new variable with the same value already created, so Python won't create a new variable, it will point to the same already created variable. So in this case, is will check the id of a and id of b, both are, if both are similar, then it will return true, otherwise false. So here we will check id of a and b is ending with 224, 224. check each and everything, सब यहाँ पर चेक कर लेना, हर एक डिजिट आपको मतलब सेम दिखेगा. इस केस में आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा. ओके, सो और एक एग्जांपल लेता हूं मैं. यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 300, y इक्वल्स टू 300. ओके, सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी अच्छा इसका आईडी चेक कर लेना. पहले पहले क्या करना है आपको, आईडी चेक करना है. प्रिंट आईडी ऑफ x, प्रिंट आईडी ऑफ x, देन आफ्टर प्रिंट आईडी ऑफ y. ओके, सो ये मैं रन कर रहा हूँ. यहाँ पर देखो अभी आईडी क्या हो रहा है यहाँ पर, इसका मतलब क्या होगा इंटरनली क्या हुआ है कि जब भी मैं x ऑब्जेक्ट क्रिएट किया with the value of 300, so there is some space allocated in memory, so here 300 will store, x is pointing to this object, and something id, some id is created 5616. so again मैं क्या किया, y equals to 300, so Python will create a new object with the same value, it's 300, and it is pointing to different object. इसका id जो भी रहेगा वो कुछ 5680 समथिंग, यहाँ से देख के मैं बता रहा हूँ. इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दोनों डिफरेंट है या एक है? टेल मी. इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, देन IDs are also different. It means in this case your x is y will return false. So tell me, what is doing, is operator, what is operator doing? Directly it is checking the id of the object. If id of objects are similar, then it will return true, otherwise. So यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, I will check here x is y. क्या आना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? यस बोलो, क्या आना चाहिए आंसर? फॉल्स आना चाहिए, फॉल्स आएगा. करेक्ट. इज ऑपरेटर समझ में आया क्या आपको? बट पाइथन में एक खासियत, यस टेल. ये ऑफर सिर्फ 0 to 255 के नंबर्स के लिए ही है. गॉट इट? क्योंकि रिपीटेडली यही नंबर्स यूज होते हैं ना, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो इसीलिए ये ऑफर सिर्फ मतलब इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे हम लोग. बट अभी इज ऑपरेटर के लिए इतना ध्यान में रखो कि दो अगर अलग ऑब्जेक्ट है तो उनके दो अलग आईडीज होंगे. दो अलग आईडी है, इसका मतलब इज ऑपरेटर क्या बोलता है, नो योर IDs are different, so I will give false. This is in terms of number. Okay, so next example में हम लोग लेंगे, what is the boolean value of true, सॉरी integer value of true. boolean को हम लोग integer में convert कर सकते हैं. true is always considered as 1 and false is always considered as 0. got it? तो इतना ध्यान में रखना. इसका अगर आप लोग int में convert करोगे ना, इसको int में, int of true 1, int of false 0, मैं आपको वो बता भी दूंगा. ठीक है, कोई बात. तो यहाँ पर मैंने रन किया एंड यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ x की id, print id of, then print id of
y. So if you see, the IDs of x and y are exactly same, exactly same. So that's why x is y will give you true. Okay, got it? I'll take another example. Another example. Let us say वेरिएबल का नाम, एक ढंग का वेरिएबल का नाम लेते हैं हम लोग, ठीक है? सो हियर आई विल से नेम is equal to Prasanna. Okay, and another, so let us say name underscore one, name underscore one. So वेरिएबल का नाम हम लोग अल्फाबेट, स्पेशल कैरेक्टर, ओनली अंडरस्कोर एंड डिजिट्स के साथ हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वेरिएबल का. सो हियर नेम underscore 2, I am constructing another object. I am creating another object with the same string. So Prasanna, Prasanna, ठीक है. So now यहाँ पर मैंने string का यहाँ string close नहीं किया था. So अगर नेम अंडरस्कोर वन इज नेम अंडरस्कोर, पहले बता सकते हो या मैं इसको आईडी चेक करके मतलब बताऊं? मैं आईडी चेक करूंगा पहले. प्रिंट आईडी of name underscore one. Okay, then print print id of name underscore two. So यहाँ पर मैं id का यहाँ पर parenthesis, यहाँ पर parenthesis. Okay, so it means what? id of name one and id of name two. Okay, 2859837. सो इस केस में क्या आना चाहिए? इस केस के अंदर क्या आना चाहिए? नेम अंडरस्कोर वन इज नेम अंडरस्कोर टू. क्या आना चाहिए इस केस? आईडी तो सेम है, इसका मतलब इट इज ट्रू. सो पाइथन ने मतलब जो भी नेम वन यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इन दैट ऑब्जेक्ट प्रसन्न स्ट्रिंग इज स्टोर्ड. सो नेम underscore one. So इसका ID जो भी है ending with 4496. And another, I'm trying to create another object, but Python said that don't create a new object. Point to the previous object because the value are same. बट इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, वो मैं आगे बताता हूँ. सो बस आपको इतना समझना है कि इज ऑपरेटर क्या करता है. इज ऑपरेटर इनडायरेक्टली आपका कंटेंट भी चेक करता है और मतलब आईडी भी चेक करता है, ठीक है. देन आफ्टर दैट आई हैव अनदर स्ट्रिंग डेटा रो एंड आई विल चेक द आईडीज. ओके, सो द आईडीज आर सेम हियर, इट इज गोइंग टू प्रिंट. सो कभी कभी हमारे से मिस्टेक हो जाती है. सो वो क्या मिस्टेक है? कॉमन मिस्टेक. शॉर्ट सिंपल स्ट्रिंग्स आर ऑफन इंटर्न्ड बाय पाइथन, मीनिंग आइडेंटिकल टेक्स्ट में रीयूज द सेम मेमोरी एड्रेस. सो ए इज बी can print true even though you wrote two separate string literals. This is a Python implementation detail, not something to rely on. Always equals to compare the string values. So वो comparison के लिए हम लोग double equals to use करेंगे. But ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर ना छोटे छोटे strings जो भी रहते हैं ना वो मेमोरी में मतलब स्टोर होते हैं. So उसको रीयूज होता है तो वो सेम लोकेशन पे स्टोर होते हैं. ओके, सो यहाँ पर वो बोल रहा है कि डबल इक्वल्स टू यूज करना है, आपको कंपेयर करना है, ठीक है. लिस्ट नेवर शेयर आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या है? लिस्ट पता है सबको? यस. L1 इक्वल्स टू, एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूं मैं. हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट? यस बोलो. ब्रैकेट्स, इन दैट ब्रैकेट एक मैं कोई एक नंबर्स वाला लिस्ट लेता हूँ. सो 10 20 30 and 40. This is my list one. Another list L2 equals to सेम नंबर्स लेता हूं मैं, सेम कंटेंट लेता हूं, 10 20 30 40. I'll run this. If you see, L1 is L2, L1 is L2. क्या आना चाहिए आप लोगों के हिसाब से आंसर? either ट्रू और फॉल्स, बट नॉट कौन सा आएगा? ट्रू. ओके, यहाँ पर आ रहा है फॉल्स बिकॉज लिस्ट नेवर शेयर आइडेंटिटी. मतलब क्या होता है? दिस इज डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज डिफरेंट ऑब्जेक्ट. जब भी L1 क्रिएट हुआ है, L1 there is a memory allocation will be there. In that memory allocation 10 20 30 40, this is pointing to this object. Another object is created L2. In this L2 too, so here also 10 20 30 40. So here it is pointing to this object. ये इसका ID different रहेगा, इसका ID different रहेगा. So in this case is operator is going to tell you that no, these two are different objects, their IDs are different, so that's why it is giving false. So एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसके IDs भी देख लेंगे हम लोग. okay? इसके IDs देखेंगे हम लोग. ID of L1, ये जुपिटर नोटबुक में ऐसे चल जाएगा. ओके, ID of L1
3592 एंडिंग समथिंग। आईडी ऑफ L2 क्या आ रहा है, दोनों का आईडी डिफरेंट आ रहा है, इसलिए इस ऑपरेटर आपको फॉल्स दे रहा है। ओके, यहाँ पर क्या बोला है, लिस्ट नेवर शेयर आइडेंटिटी, मतलब लिस्ट का भी एक, मतलब इसमें वो आइडेंटिटी शेयर नहीं करेगा, करेगा तो भी हम लोग उसको दूसरे केस में कन्वर्ट मतलब कंसिडर कर सकते हैं, बट इस केस में तो नहीं है। ओके, सो हियर आई हैव टू लिस्ट, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। इसके मैं आईडीज प्रिंट करता हूं मैं, प्रिंट print print id of list 1 and id of print id of list 2 list 2. So what is the id of list 1 ending with 2944? What is the id of list 2 ending with 0880? Correct. Then what is list 1 is list 2, क्या आएगा, वो false ही आएगा। करेक्ट। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एनी डाउट? डाउट है तो पूछ सकते हो आप। ओके, सो लिस्ट वन इज लिस्ट टू का आंसर आपका आया फॉल्स। इज नॉट का क्या आएगा, इसका मतलब क्या है, इज नॉट, इज अगर ट्रू दे रहा है तो इज नॉट क्या देगा, ऑलवेज फॉल्स देगा, इसका उल्टा है ये। सो इज नॉट क्या देगा आपको, ट्रू देगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इज नॉट हियर, इसको बोल रहे हैं हम लोग कि ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। यस, करेक्ट, ट्रू। नाउ वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर, इक्वल टू, ये क्या करता है, रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, इक्वल टू। सो कंटेंट, इट विल चेक कंटेंट, कंटेंट ऑफ, मान लो यहाँ पर मेरा लिस्ट वन है और यहाँ पर लिस्ट टू है। सो दिस ऑपरेटर विल चेक कंटेंट ऑफ लिस्ट वन, content of list 2. If content are similar, then it will return true, otherwise false. आया क्या समझ में आप लोगों को? Content is different, ID is different. ID is like what? Your address of something, address like something. But content means the data present in that list 1, data present in list 2. If both data are same, it will return true, otherwise false. आया क्या समझ में? So कंटेंट चेक करेगा लिस्ट वन और लिस्ट टू का, दोनों का कंटेंट तो सेम है, करेक्ट, तो ये ट्रू आएगा। सो व्हाट इज टिप? टिप इज कंपेयर्स आइडेंटिटी सेम ऑब्जेक्ट इन मेमोरी। इज जो है कंपेयर्स आइडेंटिटी सेम ऑब्जेक्ट इन मेमोरी, डबल इक्वल टू कंपेयर्स कंटेंट वैल्यूज इनसाइड दैट वेरिएबल। ओके, सो हियर व्हेनेवर, ये तो इफ एल्स में देखेंगे हम लोग, कोई नन असाइन किया है, अभी इसको कोई जरूरत नहीं उतना, हम लोग जब इफ एल्स देखेंगे ना तब हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे। बट एक छोटा सा एग्जांपल, रियल वर्ल्ड यूज केस है ये। एक वेरिएबल है जिसमें नन है, नन इज आवर डेटा टाइप, राइट। इफ रिजल्ट इज नन, प्रिंट रिजल्ट येट। अगर मैंने इसको रन किया, इफ की कंडीशन क्या है कि वो रिजल्ट जो है आपका वो नन, नन इज नन के साथ चेक कर रहा है। तो इफ मतलब दोनों केस में क्या हो रहा है, वो आईडीज चेक हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखोगे ना, सो रिजल्ट के अंदर नन है, सो नन डबल इक्वल्स टू नन। अगर देखोगे तो नो रिजल्ट एट, मतलब इन दोनों में भी अभी इसमें आईडी और कंटेंट सेम है, बट दिस शुड नॉट यूज। इज ऑपरेटर मतलब क्या करता है, ये कंटेंट भी चेक करता है और अपना आईडी भी चेक करता है। सो दिस इज नॉट रिकमेंडेड। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। और कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, और कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम लोग। मान लो कोई एक सेट है हमारे पास, या फिर कोई एक सेट S1 इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के, एंड S2 is equal to same 1 comma 2 comma 4 comma 5 comma 6 comma 7 comma 8 comma 9. Okay, so print print S1 is S2. तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये false, means these two IDs of the S1 and S2 are different. Okay, yes, anyone having any doubt in is and is not operator, उसे हम लोग identity operator बोलते हैं। Okay, now membership operators are in, not in. We use membership operators to check whether a given value is present inside collection. This could be string, list, set, tuple or dictionary. Then if it is present, then it will return true, otherwise false. तो हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, here hello, x is my string. Hello, learning Python is very easy as compared to other programming language. So I am executing this cell and I will print first. I will check print x. What is inside this variable? Hello, learning Python is very easy. So I am checking that is any h is present in this x variable, means hello, learning Python is very easy है या नहीं है तो वो true आएगा, नहीं है तो false आएगा। So
एच इज देयर, हेलो में एच है इसलिए वो ट्रू दे रहा है। डी, कहीं पे डी है क्या देख लो यहाँ पर, हेलो लर्निंग पाइथन इज वेरी इजी, देर इज नो डी कैरेक्टर, डी अल्फाबेट नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब क्या आएगा, ये फॉल्स आएगा। अगर इन ऑपरेटर फॉल्स दे रहा है, वही सेम क्यूरी है मेरा, मतलब सेम स्टेटमेंट है, डी नॉट इन एक्स, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि डी नहीं है एक्स के अंदर, हाँ नहीं है, इट मीन्स व्हाट, इट विल गिव यू ट्रू। ओके, पाइथन इन एक्स, पाइथन इन एक्स, और एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, नॉट स्मॉल पी और लोअर पी और अपर केस, एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। यस, पाइथन इज देयर, सो इट इज गिविंग यू ट्रू। दिस इज व्हाट मेंबरशिप ऑपरेटर, ये हम लोग कोडिंग में यूज करेंगे, इतना ध्यान में रखना कि इसको कैसे यूज करना है, स्ट्रिंग के अंदर ऐसे यूज करते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पर मैं दूसरा कुछ नाम लेता हूँ, यहाँ पर प्रसन्न, तुषार, प्रदीप एंड भूषण एंड विशाल। ओके, सो दिस इज माय लिस्ट, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, लिस्ट वन। तो मैं क्या चेक करता हूँ यहाँ पर, इज प्रसन्न प्रेजेंट इन माय लिस्ट। सिंपल, क्या करना है आपको, स्ट्रिंग लिखना है, स्ट्रिंग के अंदर जो भी मतलब लिखा है आपने वो वाला, प्रसन्न इन LIST 1 क्या आएगा, ये अगर स्ट्रिंग उस लिस्ट के अंदर है तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स। सो दिस इज प्रेजेंट इनसाइड लिस्ट, सो ट्रू दे रहा है वो। ओके, अभी मैं बोल रहा हूँ दिस लिस्ट अंकुर, इज अंकुर प्रेजेंट इन माई लिस्ट, इन लिस्ट, यस नो, अंकुर इज नॉट प्रेजेंट। सो इसको रन करूंगा तो क्या आएगा आंसर, क्या आना चाहिए आंसर, फॉल्स आएगा। करेक्ट। सो ये कोई स्ट्रिंग का अगर आपका लिस्ट है, उसमें आप स्ट्रिंग सर्च कर रहे हो तो यू हैव टू यूज इन ऑपरेटर। अगर नहीं है, आपको ऐसा चेक करना है कि आई डोंट वॉन्ट द स्ट्रिंग इन माई लिस्ट। तो एक एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पर कोई मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मान लो कि लेनेवो, लेनेवो इज नॉट, सॉरी नॉट इन, नॉट इन LIST 1, क्या आएगा इसका आंसर, यस ट्रू आएगा इसका आंसर, क्योंकि लेनेवो नहीं है लिस्ट के अंदर, सो इट विल गिव यू ट्रू। ओके, सो डिक्शनरी के अंदर हम लोग कैसे चेक करेंगे, सो कंसिडर अ डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कुछ, धीरज, नो नो नो, आई एम क्रिएटिंग अ डिक्शनरी with name and age. The name of the candidate is Dheeraj. Okay, so Dheeraj and his age is 20. Okay, so I am running this. So ये डिक्शनरी देखेंगे हम लोग आगे। So डिक्शनरी क्या चेक करता है, डिक्शनरी इज अ की वैल्यू पेयर। ओके, डिक्शनरी इज अ की वैल्यू पेयर। सो ये नेम जो है ये आपका की है, दिस इज योर की, एंड एज इज की। की कैसे मतलब आइडेंटिफाई करना, कोलन से पहले की होता है और कोलन के बाद वैल्यू होता है। ओके, सो नेम इज योर की, age is your key, Dheeraj is your value, and 20 is your value. Okay, whenever we apply in operator, membership operator in dictionary, so we have to be careful, we will check only keys not values। ठीक है, इतना ध्यान में रखना आप लोग। तो अभी मैं बोल रहा हूँ नेम इन स्टूडेंट, स्टूडेंट इज माय वेरिएबल, इसमें क्या है, डिक्शनरी है। सो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आप मुझे बताओ मेरे डिक्शनरी के अंदर नेम है या नहीं है, वो बताओ कीज के अंदर। ठीक है इसलिए ट्रू आएगा ये। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मेरे डिक्शनरी के अंदर मैं धीरज है क्या चेक करता हूँ, यस DHIRAJ, मेरे डिक्शनरी के अंदर धीरज नाम का की है क्या, यहाँ पर तो वैल्यू है, बट आई एम चेकिंग धीरज इन स्टूडेंट डिक्शनरी, इट विल गिव यू फॉल्स, बिकॉज इन ऑपरेटर विल चेक ओनली कीज not values। Okay, so then after that I will check some values in tuple, टपल देखेंगे हम लोग आगे, ये सिर्फ मैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स के लिए ही मतलब एग्जांपल लिया, रेड ग्रीन ब्लू। ओके, सो माय टपल इज क्रिएटेड, देन प्रिंट ग्रीन इन कलर्स, कलर्स इज माय वेरिएबल व्हिच कंटेन्स 3 स्ट्रिंग्स, टपल ग्रीन इन कलर्स, क्या आएगा, ट्रू आएगा। ओके, अगर मैंने प्रिंट किया यहाँ पर PRINT, प्रिंट एलो in my tuple value variable is colors, COLORS, I'll close this parenthesis, print parenthesis। So what you expect, true or false, true आएगा कि false आएगा, false आएगा ना, क्योंकि येलो नहीं है कलर्स के अंदर, false आएगा। अगर वही यहाँ पर आपने not in बोला है, not in, तो क्या आएगा, not in colors। करेक्ट, सेट के अंदर प्राइम, प्राइम्स नाम का मेरा सेट है, 4 इन प्राइम्स, यस है क्या, नहीं है, फॉल्स आएगा। 7 इन प्राइम्स, यस है, ट्रू आएगा। तो दिस इज व्हाट
योर ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर। हम लोगों ने कौन सा ऑपरेटर देखा आज? हम लोगों ने आइडेंटिटी ऑपरेटर के कौन से इज नॉट, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स कौन से? इन, नॉट इन, ठीक है, इज नॉट, नॉट इन। ओके, सो विल सी सम ऑपरेटर प्रेसिडेंस। सो कोई एक्सप्रेशन है आपके पास, सो उस एक्सप्रेशन में पहला कौन सा वाला एवेल्युएट होगा? प्रेसिडेंस डिसाइड्स विच ऑपरेटर पाइथन evaluates first in an expression with multiple operators. When two operators have same precedence, Python evaluate left to right for most operators. First parenthesis आएगा, फिर बाद में exponentiation, then after unary plus, unary minus, bitwise, then multiplication, division, float division, modulus, then addition, subtraction, left, right shift, and operator, bitwise and, bitwise or, okay, then comparison, first comparison, then identity, देन मेंबरशिप। अगर सेम है तो लेफ्ट टू राइट वो एवेल्युएट करेगा, ठीक है। देन लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, देन लास्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स, आखिरी में असाइन होंगे ये, ठीक है। एक मेरे पास एक कुछ एक्सप्रेशन है, ठीक है, आप लोग अब मुझे यहाँ पर बता सकते हो। यस, यू कैन टेल द आंसर्स क्या आएगा, और इसमें कौन सा वाला पहले, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ना आपको, जब आप 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में ये सॉल्व किए हुए, माई ए वैल्यू इज 40, बी वैल्यू इज 15, सी वैल्यू इज 8 एंड डी वैल्यू इज 4। इसमें बताओ पहला कौन सा वाला इसमें इवेल्यूट होगा फर्स्ट? यस, आप लोग बताओ कि इस एक्सप्रेशन के अंदर कौन सा इवेल्युएट होगा पहले? ए प्लस बी स्टार सी डिवाइडेड बाई डी। यस। गलत। ओके ओके, चलो बताओ अभी अभी पहले तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे। एस वैल्यू इज हाउ मच? 40, plus b value is 15, then star means multiplication, c is 8 and division is 4। तो पहले तो मैंने ऑपरेटर प्रेसिडेंस में बताया आप लोगों को, तो पहले कौन सा होता है यहाँ पर देखो, ऑपरेटर प्रेसिडेंस में पहला वाला कौन सा है? ऑपरेटर प्रेसिडेंस में पहला कौन सा ऑपरेटर दिख रहा है आपको? गलत बोला तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, गलत बोलने से ही हम लोग सही सीखते हैं। तो फर्स्ट एवरी टाइम इफ यू हैव अ पैरेंथेसिस इनसाइड योर एक्सप्रेशन, पहले ये वाला सॉल्व होगा। मतलब इसमें कौन सा सॉल्व होगा इस एक्सप्रेशन में? दिस वन, करेक्ट। सो ये आ गया मेरा 55, और बाकी का एक्सप्रेशन में एज इट इज लिख लेता हूँ, स्टार 8/4। अभी मुझे बताओ इसमें कितने ऑपरेटर्स है? अभी इस एक्सप्रेशन में हाउ मेनी ऑपरेटर्स आर देयर? टू ऑपरेटर्स, स्टार एंड स्लैश, मतलब मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आर लाइंग ऑन द सेम प्रेसिडेंस, मीन सेम लेवल में हो, तो उसमें लेफ्ट टू राइट कर लो पहले। तो इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, देन आफ्टर it will divide by 4, so 55 into 4, 50 into 8 is something 400, and plus 8 5 are 40, 440 divided by 4, so 110.40, 110.0, करेक्ट। यस, इतना आना चाहिए आंसर। सो चलो देखते हैं हम लोग, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज, इसको मैंने रन करना चाहिए। डेसिमल में क्यों लिखा मैंने? यस, और यहाँ पर डेसिमल में क्यों आ रहा है? बोलो डेसिमल, वाई? बिकॉज यू आर यूजिंग डिवीजन। गुड, नाउ टेल मी a प्लस बी स्टार सी स्लैश डी, क्या आएगा इसका आंसर? ऐसे देख के बता दो इधर से। पहले कौन सा इसमें एवेल्यूट होगा? पैरेंथेसिस, करेक्ट। पैरेंथेसिस कितने यहाँ पर हमारे पास? ये अलग से हो जाएगा, ये अलग से हो जाएगा। पहले a प्लस बी मीन्स हाउ मच? 40 प्लस 15, दिस इज व्हाट? 55। ये स्टार एज इट इज आ जाएगा। इसका c डिवाइडेड बाई डी, c डिवाइडेड बाई डी मीन्स नॉट टू 2.0, 2.0 क्योंकि स्लैश है ना, ये फ्लोट में देता है आपको। सो हाउ मच? 55 into 2.0 means 110.0, correct? So 110.0। so next one is, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, a plus b स्टार c स्लैश डी। यस, अभी मुझे बताओ, आंसर बताए तो भी चलेगा, आपको मैं प्रेसिडेंस भी यहाँ पर बता रहा हूँ। तो पहले इसमें कौन सा वाला एग्जीक्यूट होगा? यस, ये पैरेंथेसिस होगा, क्योंकि पैरेंथेसिस का पहला आएगा b इंटू स्टार सी। तो चलो हम लोग वो लेंगे, b इंटू सी मीन्स हाउ मच? 15 इंटू 8, 8 10 80, 80 प्लस 40 120, कुछ आएगा 120 इसका, प्लस a इज 40 स्लैश डी। इसमें पहले एडिशन होगा, 120 को 40 एडिशन होगा कि 120 को डिवाइड पहले होगा? ये बताओ, आर यू देयर गाइस? हाँ, सो व्हाट विल बी द आंसर? कितना आना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? और ये भी बता दो कि इन दोनों प्लस और डिवीजन ऑपरेटर्स में पहला कौन सा वाला
एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर दिया हुआ है 70.0। ओके, दैट्स good. That's a correct answer. So I hope you people understand operators and operator precedence. Okay. हाँ, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, यस। इन इन सब में अगर इन दोनों में से कुछ है तो लेफ्ट टू राइट क्रिएट करेगा। अगर स्टार डिवीजन है तो उसमें पहले स्टार, मतलब पहले दूसरा नहीं है, सेम ही रहेगा वो, बट लेफ्ट टू राइट वो चलता है, ऐसा है वो। सो इफ यू डू प्रैक्टिस देन यू विल कम टू नो। ओके, सो कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस है, tomorrow I will take these mathematical functions. I am stopping here.